नहीं वो उस पे Yeah, नहीं हो रहा है। I just recording is happening. yes, Ashit, it's on my computer. Cloud recording is possible. Good morning and welcome to yet another session of Oyster. We're on 21st of July 2024. We begin where we left last on our readings from Khalil Gibran's The Prophet. Then a lawyer said, "But what of our laws, master?" And he answered, "You delight in laying down laws, yet you delight more in breaking them, like children playing by the ocean who build sand towers with constancy and then destroy them with laughter. But while you build your sand towers, the ocean brings more sand to the shore. And when you destroy them, the ocean laughs with you. Verily, the ocean laughs always with the innocent. Hmm. But what of those to whom life is not an ocean, and man made laws are not sand towers, but to whom life is a rock, and the law a chisel with which they would carve it in their own likeness? What of the cripple who hates the dancers? What of the ox who loves his yoke and deems the elk and the deer of the forest stray and vagrant things? What of the old serpent who cannot shed his skin and calls all others naked and shameless? And of him who comes early to the wedding feast and when overfed and tired goes his way, saying that all feasts are violation and all feasters lawbreakers? What shall I say of thee save that they too stand in the sunlight, but with their backs to the sun? They only see their shadows, and their shadows are their laws. And what is the sun to them but a caster of shadows? And what is it to acknowledge the laws but to stoop down and trace their shadows upon the earth? But you who walk facing the sun, what images drawn on earth can hold you? You, you who travel with the wind, what weather vane shall direct your course? What man's laws shall bind you if you break your yoke, but upon no man's prison door? What laws shall you fear if you dance but stumble against no man's iron chains? And who is he that shall bring you to the judgment if you tear off your garment, yet leave it in no man's path? People of Orpheus, you can muffle the drum, you can loosen the strings of the lyre, but who shall command the skylark not to sing? हर लाइन कोटेशन है. Then a lawyer said, "But what of our laws, master?" And he answered, "You delight in laying down laws, yet you delight more in breaking them. Like children playing by the ocean who build sand towers with constancy and then destroy them with laughter. But while you build your sand towers, the ocean brings more sand to the shore. And when you destroy them, the ocean laughs with you." क्या बोल रहा है? कौन एक्सप्लेन करेगा?
when you destroy them, the ocean loves with you. With you underline. इसके बाद एक लाइन पढ़ो जो इनोसेंस का लिखा है. Verily, the ocean laughs always with the innocent. इधर रुको अभी, इसके ऊपर करते हैं रिफ्लेक्शन. जी. Permit me to read it myself जी. once जी again. sir. Then a lawyer said, "But what of our laws, master?" And he answered, "You delight in laying down laws, yet you delight more in breaking them. Like children playing by the ocean, who build sand towers with constancy and then destroy them with laughter. But while you build your sand towers, the ocean brings more sand to the shore. And when you destroy them, the ocean laughs with you. Verily, the ocean laughs always with the innocent." ऋषि जी बताइए. सर इसका वैल्यूएशन क्या है बताइए. मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ. In fact, more laws are being made to be broken. I mean, I'm just starting. Don't think that it is the final this thing understanding. Well, all the laws are made in selfishness. I'm going beyond this and just to explain it. No law. I mean, because the laws, while breaking them, are it means more people are breaking, means that the laws are not made genuinely. And if the laws would have been made through the heart, then they did not be broken. And well, the exact meaning of this sentence is that while we are against the laws, it means it doesn't mean that we are breaking the laws. We are innocent. Most of the people are innocent, and the nature is with the innocent. Ocean means nature. So we should not worry. I mean, one should not worry about the laws. Laws are just the society norms. They are made to accomplish some task, not hurt, not through the heart, but through. आपने बोला था all people are innocent. ये मुझे समझ में नहीं आया. All तो मैंने शायद गलत बोल दिया जी. All those people who are, I mean, laws are to be broken by innocent. To be broken. All laws are being broken by innocent. Most of the time. नहीं बदमाश लोग लॉ तोड़ते हैं. इनोसेंट कहाँ है? Sir, most of the time innocent. If you just get the data collected, most of the time laws are, I mean, well, I think badmash to maybe 5% only, in my opinion. ये कौन लॉ मानता है जो इसको बंद कर देता है फिर उसको छोड़ देता है, इसके पहले पोलिंग के पहले बंद कर देता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन निकाल देते हैं. ये सब क्या है? इनोसेंट है ये. Before one gets the final verdict, one should not be put behind bars. So this is the law which one has made just in selfishness. जटिल हो रहा है, वो बहुत जटिल हो रहा है. उसको सिंप्लीफाई करो सर. और भी जटिल हो गया. दिमाग समझा नहीं. अच्छा चलो और कोई करो, खोलो इसको, एक एक करके खोलो, सिंप्लीफाई करो.
You delight in laying down laws, yet you delight more in breaking them. क्या मतलब हुआ इसका? तोड़ने में just ज्यादा because खुशी मिलती है. that just because you have the power, you stand out making laws, rules, regulations. मैं इस यूनिट का हेड हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ. I can make the laws. एक कम्युनिटी का हेड हूँ, कंट्री का हेड हूँ. You feel you have the liberty to lay down laws, and yet खुद ही सबसे ज्यादा तुम डिलाइट करते हो in breaking them. मेरे को कौन पूछेगा? सबसे ज्यादा अब इसका बताओ. like children playing by the ocean who build sand towers with constancy and then destroy them with laughter. ये नो डाउट मेहनत से बनाते हैं खूब. टेंशन कॉन्स्टेंसी बेसिकली स्टेडफास्ट थिंकिंग. although you're making sand towers, then like children you just break them down, destroy them, because you know they're not going to be permanent. ये sand towers क्या है? ये तो औषध बेसिकली उसने एक एग्जांपल दिया है. क्या है? कि like children playing by the ocean, so it is like आपने एक लॉ बनाया और it is not basically what I am understanding from it. It is generally not talking about the written laws or something. A priest in the temple or the Maulvi at the mosque, they also make the laws as per their wish, and then someone succeeded them, make the amendments, and then create another law, which is like a breaking the previous law and creating of their own, just to have a supremacy in the society. There is a level of impermanency in this. There are no permanent laws. So they feel delighted basically by making amendments and creating their own identity through the laws. Destroy them with laughter क्यों लिखा? Because I guess they always knew it was not going to stay. See, I don't know, but maybe evil-minded always do it with the laughter. मुझे कंफ्यूजन इधर ही हो रहा है. ये बदमाशों की बात कर रहे हैं, इनोसेंट की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं ये इस सेंटेंस में? इमोशन. नहीं, बाद में तो यही बोल रहा है कि बेसिकली नेचर ऑलवेज स्टैंड विद द इनोसेंट, वेदर यू आर मेकिंग द लॉ, वेदर यू आर ब्रेकिंग द लॉ. ओके. हाँ. अभी थोड़ा सा क्लाउड क्लियर हुआ. वो लास्ट में आ रहा है. अभी इनोसेंट में नहीं जाएंगे. अभी इधर like children playing by the ocean who build sand towers with constancy and then destroy them with laughter. मान लो ये जो वर्साई पैक्ट पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था. वार्सो. हाँ. उसको हिटलर ने तोड़ा. किसी ने बोला तो ये पैक्ट है, ये तो ऐसा होगा नहीं. हिटलर ने बोला दैट्स अ पीस ऑफ पेपर. आई एम माइटी, आई विल चेंज द. वर्साई पैक्ट को भी उड़ा दिया, अटैक कर दिया. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, दिस है ना. Yeah. तो बेवकूफ, ये चिल्ड्रन जो है, मुझे लग रहा है चिल्ड्रन इज अ सिंबल ऑफ बेवकूफ. Yeah, that's basically is say example. अच्छा. Like children playing by the ocean who build sand towers with constancy. Sand towers मतलब वो कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है. टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं. Temporary. हाँ, टेम्पररी. And then destroy them with laughter. मतलब जब जरूरत पड़े तो बना लो. ऋषि जी ने ठीक बताया था, सेल्फिश वर्ड यूज किया था ना. जब जरूरत पड़े तब बनाता है, जब जरूरत पड़े हा करके उड़ा देता है. That's a piece of paper. कोई बात नहीं, खत्म.
अभी उसको नहीं देखेंगे। अभी मैं जो कह रहा हूं, माई वर्ड इज लॉ। Like children playing by the ocean who build sand towers with constancy and then destroy them with laughter. These children are, I mean, they're mighty freedom mongers. बच्चे फ्यूडलिस्ट होते हैं ना, फ्यूडल वे में जो कर दो करो, इस तरह से। But while you build your sand towers, the ocean brings more sand to the shore. ये बहुत जरूरी है समझना। इसका मतलब क्या हुआ? While you build your sand towers, the ocean brings more sand to the shore. And when you destroy them, the ocean loves with you. ये बहुत ही गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा है ये। Ashit, it could be like this, that you are making temporary laws or structures out of your wish, and ocean कह रहा है ले और बना, and when you decide that this is देखा। मतलब जब लगेगा कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तो नेचर ऐसा बिहेव करेगी, जो मर्जी कर, ये ले और ले और ले, हाँ, और ले। टेम्पटेशंस और दे रहा है वो, लो और सैंड। हाँ, ये ईगो, ये ईगो है। हाँ हाँ, जितना ईगो है उसको, ठीक है भाई, मतलब हाँ करेक्ट। वो खुदा कहेगा मैं हट जाता हूँ, चल तेरे रास्ते से, कर ले जो मर्जी करना है कर ले, मैं बीच में नहीं खड़ा होऊंगा, दौड़ ले, जी ले अपनी जिंदगी। और जब वो तोड़ेगा उस लॉ को, then nature will have the last laugh. ये टेम्पोरेरी था, तूने बनाया, तूने तोड़ा, दुनिया में जहां था उधर ही रह गया। तूने क्या किया? दुनिया के ऊपर तो कुछ कर नहीं पाया, अपना मजाक किया अपने जिंदगी से। मुझे तो ये समझ में आ रहा है। और क्लाइमेट चेंज को भी ऐसे देख सकते हैं ना। क्लाइमेट चेंज को देख ले, पागलों की तरह ट्रीज काटे गए इंडस्ट्रियलाइजेशन करके नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आज भी। हाँ, ultimately who will laugh? Nature will laugh ना, कि ठीक है, you destroyed yourself, buddy, you are not destroying me. Now look at my dance. हाँ, then nature will dance. हाँ, so nature is laughing that you are basically destroying yourself by making this temporary structures. And हमारी narrow mindedness देखो, उसको भी हम natural calamity का नाम देते हैं। हाँ, बेवकूफी है। पहाड़ कट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, वैसे गिर रहे हैं अपने आप। पेड़ और पहाड़ तो तुमने काटे, अब बोल रहे हो नेचुरल कैलेमिटी है। हाँ, नेचर ने थोड़ी ना पेड़ काटे। We are building towers with imaginary sands. Man-made calamities है। नेचर ने तो बेचारे ने सिर्फ बैलेंस किया। And nature will come and shake and ruin everything. नेचर will only balance, उस बेचारी को सिर्फ बैलेंस करना आता है। नेचर कुछ नहीं करता। नेचर तो सर एक अर्थक्वेक का सिग्नल देता है, सब घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं दौड़ के, फिर स्ट्रक्चर सब रह गया वहीं पर ही। एक्चुअली ये भी समझना है राजीव, नेचर सिग्नल देता है कि आदमी जो करता है उसी का असर होता है अपने आप। नेचर कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। मदर कैन नॉट पनिश द चिल्ड्रन। वो कहते ना, बुरा काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। नेचर तो जैसे स्टैंड स्टिल देख रहा है। तू हंसता है तो नेचर हंसेगा, तू शेर बनता है तो नेचर भी बस हट जाएगा तेरे रास्ते से, बन जा शेर।
Nobody knows the outcome, na. People have got a very shallow, short-term perspective in their life, Myopic. and all the action based are based on that. तो इसमें वो इटर्निटी का सेरेनिटी की बात हो रही है, अभी इनोसेंट में आएगा. नेक्स्ट पढ़ो. हाँ, वेरीली पढ़ो. नहीं, हाँ, ये पढ़ो, ये सबसे जरूरी है. Verily, the ocean laughs always with the ocean innocence. But while you build your sand towers, the ocean brings more sand to the shore. And when you destroy them, the ocean laughs with you. Verily, the ocean laughs always with the innocent. ये क्या चेंज है इधर? ड्रास्टिक चेंज है इसमें तो. Verily the ocean laughs with or laughs always with innocent, with the innocent. पहले कह रहा है when you destroy them, the ocean laughs with you. ये कहा जा रहा है कि जब ऐसा होगा तभी लोगों का अकल खुलेगा कि ये मैंने क्या किया. And then they will come to innocence. Is it what is being mentioned here? Assign no value to the tower, to the imaginary tower. ये इनोसेंट कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है. Children, we people. हाँ, पता नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. जिनको कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता है, do not bound by the rules. Innocent is a metaphorical statement मुझे लगता है. वो भी तो इनोसेंट है ना, जो बेवकूफी से टावर बनाया और टावर तोड़ा. मतलब उसका लॉ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके मन में. वो तो मौके का फायदा उठाता है. तो एक तरफ से तो इनोसेंट ही हुआ. टावर बनाते हुए तो गहन चिंतन करके बनाया जी कि यहाँ पे मेरा इतना हाइट का होगा, इतना बालकनी भी बनाऊंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा. लेकिन जब वो चिंता में बनाया है, लेकिन गिराते हुए खुशी हुई है. आई थिंक इसमें औषध हम लोग ना टावर में फंस रहे हैं. असली खुशी गिराने में हुई है. नहीं, we are actually getting trapped in a sand tower. Basically that is something like he is giving as an example. It cannot be a sand tower literally meaning that ocean के साथ में आपने sand tower बनाया फिर तोड़ दिया तो laugh. No, I think this is like just an example. It could be not a momentary sand tower. It could be maybe a century old sand tower according to the overall scenario. Maybe it's a very deep actually. वो सैंड टावर का एक एग्जांपल दे रहा है. जैसे आई सेड दैट लेट्स सी दैट a priest is made laws initially. अब वो जब उसके पास और पावर आई तो the next priest made another strict power just to establish his position. He felt far better. He broke the earlier law. He made his own laws or made the amendment of his own laws, amendment to the old law, and he felt very good about it, destroyed the earlier ones. But he said that nature always stands with the innocent. नहीं राजीव, इधर एक बहुत गहराई से देखिए. नहीं, जैसे अभी आपने हिटलर का एग्जांपल दिया था ना, उसको और नेचर ने तो उसको और बढ़ाया ना, चल तू और ले और कर. अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ उसका? वो अपनी लालच से ही मारा गया. हाँ, नहीं, इधर मार्क करिए, इधर नेचर लिखा ही नहीं, इधर लिखा है verily the ocean loves always with the innocent. Now ocean indirectly doesn't mean nature. No,
एक सेकंड, इट मीन्स बट इट हैज मोर वैल्यू अटैच टू इट, जो मुझे लग रहा है। इधर देखो, बताइए, सैंड टावर बड़ा है या ओशन बड़ा है? Ocean, of course. हाँ, जो ओशन इतना वास्ट और बड़ा है, उसके आगे ये सैंड टावर वाला खेल कोई मायने नहीं रखता है। जब बना के खत्म कर देता है, ओशन हंसता है। मतलब इनोसेंट कौन है? कोई, हम लोग कर रहे हैं नोइंगनेस। हु इज वाइज? जिसको सब पता है, आगे पीछे की बात क्लियर है, जो अपनी सेल्फिश ऑब्जेक्टिव से फंसे नहीं है, वो ओशन है। वो भास्ट है, बिग है। तो व्हेन योर माइंड और व्हेन योर consciousness is vast and big enough, then only you are innocent. And then all these जो स्टोरी है, जो ड्रामा है, इसको देख करके आपको हंसी आएगी। मुझे ये समझ में आ रहा। मतलब आपका मन जितना बड़ा होगा, बाकी सारी चीज उतना ही ड्रामा लगेगा। कहते हैं ना, व्हेन यू, जब जाग उठे तब अंधेरा खत्म हो जाता है। ओशन इज द अवेकेंड बीइंग। वो आगे उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है विद द मेटाफोर ऑफ द सन। When you put your back toward, you only see your shadow. Walk into the sun, then there is no shadow to follow on. आगे चलते हैं। हाँ। But what of those to whom life is not an ocean? And man-made laws are not sand towers, but to whom life is a rock, and law a chisel with which they would carve it in their own likeness. What of the cripple who hates dancers? What of the ox who loves his yoke and deems the elk and deer of the forest stray and vagrant things? What of the old serpent who cannot shed his skin and calls all others naked and shameless? And of him who comes early to the wedding feast, and when overfed and tired goes his way, saying all feasts are violation, and all feasters lawbreakers. But what of those to whom life is not an ocean, and man-made laws are not sand towers, to whom life is a rock, and the law a chisel with which they would carve it in their own likeness? Comment. ये रॉक और ओशन, अंडरस्टैंड, ये है flip side of each other. To whom life is a rock. कौन किसको? ये पागल लोग जो मैनमेड लॉ बनाते हैं। For them life is a rock, and the law a chisel with which they could carve it in their own likeness. ये पागल लोग, बेवकूफ लोग, deluded, these deluded souls. But what of those to whom life is not an ocean? मतलब जिसके लिए लाइफ ओशन है, वो तो लिबरेटेड हो गया, उसको भूत भविष्य वर्तमान सब पता चल गया। Man-made laws are not sand towers. हाँ, अभी क्लियर हो रहा है। नहीं, इसमें बहुत बड़ी बात है राजीव। हम सोच रहे हैं कि हम नहीं, हमने जो अभी डिस्कस किया है वो फैक्ट नहीं है, शुरू से पढ़ो। वो नहीं है, अभी क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत।
एक तरफ से ऋषि ठीक कह रहा था, मोस्ट ऑफ अस आर इनोसेंट, मोस्ट नहीं, वो सारे लोग जो ये लॉ वगैरह को मजाक समझते हैं, बोलिए ये लॉ क्या है, जो मैन मेड लॉ है ये सब कुछ नहीं है, उस लॉ के साथ वो बहता रहता है, उस लॉ के अंडर में उस लॉ के साथ अलाइन होकर के अपना मिशन करता है, और जब खत्म हो जाता है तो फिर भी हंसता है। ये सब हवा का झोंका है। ऐसे सोचने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, इनोसेंट, जो बंदा समझते हैं कि ये सब लॉ जो भी हो रहा है ना, सब मजाक है, इसकी कोई मायने नहीं है। They are above the Those law. are innocent people. Those are the wise ones. ये सब सैंड टावर्स है। वो एक आप स्टडी करिएगा, आप सर्च करिए, मैन फ्रॉम ओडिशा हु डिजाइन्स ब्यूटीफुल इमेजेस ऑन द सैंड। वो सैंड में रहता है और सैंड के ऊपर इतनी जबरदस्त वो बनाता है, He's world famous. है वर्ल्ड फेमस। वो जो बनाता है ना, ओ माय गॉड कहां गया, हाँ, वो जो बनाता है ना, वो तो कुछ देर बाद वो वेव्स आके उसको खत्म कर देता है और वो हंस करके दूसरी जगह में चला जाता है, फिर बनाता है। दे आर रियली इनोसेंट। समझ में आ रहा जी? Yes. ये कोई फालतू की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये उसी सैंड को लेकर के वो इमेज बनाता है, ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्टिव, मतलब पूरा दुनिया बनाता है वो, मंदिर की बारीकी सब वो उसमें लगाता है। वो सुदर्शन भीड़ पट्टा हो है। जाता है, लोग देखते, हाँ, फिर चला जाता है, सुबह सुबह उठ करके पानी आके उसको धो देता है। ये है रियल आर्टिस्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, फ्लो विद द करंट। ये भी आएगा बात, फ्लो विद द करंट। अब उसका मन क्या होगा? उस रेत के ऊपर कभी कोई पिक्चर बनाता है और वो अपना पेशा बना लिया है, क्या उसको पता नहीं है ये जो बना रहा हूं कल सुबह तक नहीं रहेगा? फिर भी जी जान से बनाता है। ही इज अ वाइज मैन। अपना काम करो, कोई प्रत्याशा नहीं रखो, न्यूट्रल गियर में चलो गाड़ी, वो है इनोसेंट। और अभी आता है ये रॉक सॉलिड, जो अपना बनाता है और उसी को फाइनल मान लेता है, और उसको पता ही नहीं है इसके ऊपर कोई लॉ हो सकता है। ये है बेवकूफ। हाँ, उठाइए इसको। व्हाट ऑफ दोज टू हुम लाइफ इज नॉट एन ओशन? उस आर्टिस्ट के लिए लाइफ इज एन ओशन। और मैन मेड लॉज आर नॉट सैंड टावर्स। उस आर्टिस्ट के लिए मैन मेड लॉज वो बकवास है, उसकी कोई मतलब नहीं है, अभी करो और निकलो। पर इसके लिए जो हमारा लॉ है वही रॉक सॉलिड है। बट टू हुम लाइफ इज अ रॉक एंड द लॉ ए चीजल विथ विच दे वुड कार्व इन इट देयर ओन लाइकनेस, वो खुद ही अपने फ्रेम में गिर जाता है, फंस जाता है। वो लॉ बनाता है और उसी को भगवान मानता है। ये बता रहा है। डज इट मेक सम सेंस? ये है कॉन्ट्रास्ट। चलिए ऊपर नेक्स्ट देखते हैं। What of the cripple who hates the dancers? What of the ox who loves his yoke and deems the elk and deer of the forest stray and vagrant things?
What of the old serpent who cannot shed his skin and calls all others naked and shameless? And of him who comes early to the wedding feast and when overfed and tired goes his way, saying that all feasts are violations and all feasters lawbreakers. एक मिनट, ये जो बंदा इतनी सारे एग्जाम्पल के बीच में जो बंदा निकल के आ रहा है, बताइए ये ओशन है या रॉक है? किसकी बात हो रही है अभी? तब क्लियर होगा, अभी क्लियर हो गया. What of the cripple who hates dancers? Is he a rock or an ocean? Rock. What of the ox? Rock. What of the ox who loves his yoke and deems the elk, how to pronounce this? Elk. And deer Barasinga of the forest. हाँ जी. What of the old serpent who cannot shed his skin and calls others naked and shameless? ये रॉक है या ओशन है? ये सारे बंदे जिसके लिए मेटाफोर्स यूज किया गया. करेक्ट. And of him who comes early to the wedding feast and when overfed and tired goes his way, saying that all feasts are violation and all feasters lawbreakers. हम कितने लोग हम ऐसे करते हैं, खाना खराब है कहते रहते हैं पर पूरा खा के आते हैं. पूरा खा के आते हैं. ये खाना ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर छोड़ता नहीं है मुफ्त का खाना. पूरा उठा के आएगा पैसा. हाँ, फिर निंदा करेगा. अगर नोट कितना भी गंदा हो फिर भी आदमी पॉकेट में रखता है ना. हाँ, फिर बोलेगा करना पड़ता है, क्या करें, दुनियादारी ऐसी है, करना पड़ता. दुनियादारी है. फिर अपने आप को जस्टिफाई करके निकल जाएगा. किसी जगह में बोलेगा नहीं है मैं गलत हूं. पढ़ो उसके बाद, अब क्लियर हो गया ये. And what shall I say of these save that they too stand in sunlight, but with their backs to the sun? What shall I say of these save that they too stand in the sunlight, but with their backs to the sun? They only see their shadows, and their shadows are their laws. क्लियर हो गया. And what is the sun to them but a caster of shadows? तबीयत खुश हो गया जी. Caster of shadows. क्लियर हो गया, मजा आ गया जी. चलो आप लोग बोलो, रिफ्लेक्ट करो, फिर निकल आते हैं इससे. आज का वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाया था. मैंने सनशाइन की बात भी की है. अचानक लुक एट द कोइंसिडेंस. What is it to acknowledge the laws, but to stoop down and trace the shadows upon the earth? What shall I say of these, save that they too stand in the sunlight, but with their backs to the sun? They see only their shadows, and their shadows are their laws. And what is the sun to them but a caster of shadows? And what is it to acknowledge the laws but to stoop down and trace the shadows upon the earth? इसका प्रैक्टिकल चित्र निकल रहा है. पढ़ो, आगे पढ़ो. But you who walk facing the sun, what images draw on the earth can hold you? ये कौन है? ये ओशन है या रॉक है? ये सेंटेंस जिसके लिए लिखा गया है, पढ़ो दोबारा. यही सेंटेंस, लास्ट वन. ये रॉक है, ओशन है, बताओ. But you who walk facing the sun,
What images drawn on earth can hold you? Ocean. Ocean, absolutely. हाँ हाँ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलो। You who travel with the wind, what weather vane shall direct your course? क्वेश्चन है या सन है? Ocean. What man's laws shall bind you if you break your yoke, but upon no man's prison door? What laws shall you fear if you dance, but stumble against no man's iron chains? And who is he that shall bring you to the judgment if you tear off your garments, yet leave it in no man's path? राजीव, जो भी, इसको अभी इधर ही खत्म करो। राजीव, जो हमने डिस्कस किया ना पहले पैराग्राफ के, उसकी हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी रियलाइजेशन पूरा नहीं था, कमजोर था उसमें। वी डिड नॉट परसीव द रियल मीनिंग देन। वापस आओ फर्स्ट सेंटेंस में, और पहले हम क्या डिस्कस किया था उसकी वैलिडिटी को इवैल्यूएट करो। दैट विल बी अ ग्रोथ फिनोमिनन फॉर अस। फर्स्ट सेंटेंस पहले पढ़ो, फर्स्ट पैराग्राफ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिफ्लेक्ट किया था। हाँ हाँ, इधर से पढ़ो। You delight in laying down laws, yet you delight more in breaking them. Like children playing by the ocean, who build sand towers with constancy and then destroy them with laughter. But while you build your sand towers, the ocean brings more sand to the shore, and when you destroy them, the ocean laughs with you. Verily, the ocean laughs always with the innocent. ये किसकी बात हो रही है? ये बंदा कौन है? ओशन है या रॉक है? Ocean. Ocean. हाँ, पहले हम लोगों ने इसको रॉक बना के डिस्कस किया था। ये वो इनोसेंट बंदा है जो सब समझता है, ये लॉ वगैरह ड्रामा है, अपना काम करो और आगे निकलो। इसके साथ, इस फ्रेम में अपने आप को मत फंसाओ। दैट इज अ वाइज मैन, दैट इज द इनोसेंट मैन। कबीरा खड़ा बाजार में, सबका मांगत खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। सेंटर में रह, बहने दे नदी का धारा है, हवा का झोंका है, खेल ले भाई इसके साथ। जब तक खेल सकता है खेल ले, और जब मिट जाएगा हंस करके चला जा। ये है बात। उस बंदे की चरित्र निकाल के लाया है कि इस दुनिया में आपको किस तरह से जीना है। व्हाट इज योर स्पिरिचुअल रियलिटी, अभी क्लियर हुआ है। चलो, इफ यू वांट टू रिफ्लेक्ट, स्टे इन द पेजेस और कम आउट ऑफ द शेयरिंग नाउ। लास्ट 4 लाइनें आशित इस चैप्टर की, नहीं तो फिर अगली बारी कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी। इट नहीं फिनिशेस करो ओवर। करो। पीपल ऑफ ऑर्फिलिस। You who travel with the winds, what weather vane shall direct your course? What man's laws shall bind you if you break your own yoke, but upon no man's prison? What laws shall you fear if you dance but stumble against no man's iron chains? And who is he that shall bring you to the judgment if you tear off your garments, yet leave it in no man's path? हाँ, ये रॉक है, ये रॉक है। Ocean. Ocean. हाँ All these ocean. उसने अपने आप को नेचर के लॉज के साथ एक कर लिया है। Correct, correct. People of Orphalese, you can muffle the drum, you can loosen the strings of the lyre, but who shall command the skylark not to sing? भाई तू मालिक नहीं है, इधर टेनेंट है। तुझे घर दिया है, ऐश कर, नेचर को कैसे और चला जा। नहीं, उसको नेचर को थोड़ा कंट्रोल करोगे। हाँ, मैनमेड थिंग्स तो तुमने कंट्रोल कर ली, ड्रम को भी कर लिया, मफल कर दिया, टायर की भी स्ट्रिंग्स लूज कर दी। ओशन को कैसे कंट्रोल करेगा भाई? Who shall command the skylark not to sing? Universal law. अरे वाह, आहा हुआ किसी को? आहा आहा हुआ, बस इधर तक रखो पेज नंबर या इसको। Can you stop a bird from chirping? करेक्ट।
Not only can you, but who can? Who can? Seriously. You can actually stop your guitar, but not the तो bird. अपनी खिड़की बंद कर लो, अपने कान बंद कर लो, Yeah. तो चिड़िया को सिंग करने से कौन रोकेगा? ये अपनी खिड़की और कान बंद करके you assume that you have stopped everything. Correct. Like a fool. So very true. अगर मैं कहूं इधर रिलीजियन इज एन ओपिनियन, क्या बोलोगे आप? Man-made है. इमेजिनेशन इज एन ओपिनियन. Man-made है. राम मंदिर इज एन ओपिनियन, जहां राम रहता है, दैट्स एन ओपिनियन, नहीं, है ना? बिल्कुल. तो इस लाइफ में सिवाय ओपिनियन का क्या लेके हम जी रहे हैं? We have framed our life on the basis of opinions, man. Self-imposed. Everything is self-imposed. Limitations. जिसके इर्द गिर्द हम जिंदगी जी रहे हैं. मजा आ गया जी आज तो. My journey is complete today. Very good. Thank you everyone for your contribution. This is the beauty. बोलिए. कोई कुछ बोलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा? बोलिए. तो प्रकृति के लॉज के आगे हमारे सब लॉज फीके हैं, टेम्परेरी है, All man-made laws are विनाशकारी है. एक चीज और भी रोशन ये कह रहा है कि basically you keep on doing your work without violating on the without violation in the other people's domain, or you just do the right path for yourself and without disturbing others. That's it. Then you are then you are innocent and nature will be always with you. Correct. जहां तुमने पंगा लिया, बस गड़बड़ कर दिया सर. Then you become a destructive mind. Then you become a destructive mind. तो वही जो उन्होंने मेटाफोर यूज किया है, बैक टुवर्ड द सन और वॉक टुवर्ड द सन. Yes. When you're walking towards the sun and you're facing the sun, there is no shadow in front of you. Yeah. तो मैं जो ये चिल्ला रहा हूं, जीवन में सिर्फ नेचर है और कोई गॉड कुछ नहीं है. तो इट मेक्स सेंस ना? Absolutely. इट इज ओनली नेचर. इतना जिंदगी का टाइम आपने ये सब जागरण आगरण करके बेकार बकवास करके टाइम बिता दिया, और ऊपर वाला हंसता है. बोले देखो क्या मेरा पूजा हो रहा है. नेचर के साथ रहो, फ्लो विद द करंट, बस. वो आप सुनाते हैं ना, वो रथ वाली पोएम. हाँ हाँ. अब ऋषि जी ये सब सुनेगा, ऋषि जी अब ये सब सुनेगा, फिर वो आदमी जैसा. ऋषि जी नाराज नहीं होना, मैं मजाक कर रहा हूं. आई डोंट मीन इट, बट मैं किसी को तो टारगेट बनाऊंगा ना. तो ऋषि जी क्या करेगा? आई लाइक क्रिटिसिज्म सर. Criticism नहीं, मजाक है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मजाक एंड क्रिटिसिज्म. This is using you as a metaphor. हाँ. तो अभी उस बंदे को बोलेगा खाना खराब है, पूरा भरपेट खा के आएगा, तो ऋषि जी हाँ हाँ करके बोलेगा नेचर सब कुछ है, जाते जाते मंदिर में एक बार घंटी बजा के फिर आ जाएगा. क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है. नहीं ऐसा नहीं. I align with the nature in my task also. हाँ. पर वो लक्ष्मी पूजा में बोलेगा, लक्ष्मी पूजा करने के टाइम बोलेगा
मेरा घर करके जाना। दिल में यही है कि पहले वहां जाना, लेकिन बोलने में निकल जाता है कि भी यहाँ से आके वहां भी जाना। लेकिन वही ऐसा तो कह रहा हूँ, निकल जाता है, वही तो कह रहा हूँ, निकल जाता है, क्या करूँ, खाना पड़ता है, खा लिया। ये जवान है जी, दिल से नहीं बोलता है, मैं दिल से बोलता हूँ कि पहले सबके यहाँ जाके फिर अगर टाइम मिले तो आ जाना। वो क्या चीज है जो आपकी आपकी इस सच्चाई को, इस क्या कहते हैं उसको, इसको जस्टिफाई करा रही है कि मैं ऐसा नहीं हूं, वो बात क्या है? सर बात ये है कि आप पूछ रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग्स को देखते हुए फीलिंग ये बोलने में निकल जाता है। ये कम से कम ये है कि मैं ये तो बोलता हूँ कि सबके पास जाए, नहीं तो बोलते हैं बोलना, लक्ष्मी जी मेरे पास आना। स्वार्थ, पूरा स्वार्थ, ये बचपन से नहीं है। निकल जाता है या फिर रह जाता है कहीं, फिर अगले बार भी निकलेगा? कभी भी नहीं, नेवर निकल जाता है तो निकल गया, वो तो ठीक है। पर निकला है क्या, ये भी पूछना है, पूरा निकला है क्या? सोसाइटी में रहना की बात कर रहे हैं हाँ आप। जी, आई डोंट केयर, आई डोंट देखो, केयर फॉर द सोसाइटी इवन। देखो 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 बंदे का सोसाइटी ईगो कैसे छोड़ो, निकल रहा है, देखो यू देखो नो बंदे का ईगो कैसे निकल रहा है। आई डोंट मेरे डू साथ इट। मेरे साथ आप कहाँ बीती तकलीफ हो है। रही है इसको, कहाँ वाइफ तकलीफ हो के रही है साथ इसको? वाइफ के साथ एक दिन आर्गुमेंट हो रही थी, तो वो आउट ऑफ हर एंगर शी बर्स्ट आउट, तुम तो बिल्कुल हाँ, अशित की तरह नास्तिक हो गए हो। मैंने हाँ, कहा हाँ, एक नास्तिक है, मेरा छोड़ो। तो पीपल बिलीव कि भैया अगर आप मंदिर की घंटी नहीं बजा रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, तो आप नास्तिक हो। ऋषि जी आप एक चीज हमें बताइए, जब तक बंदा अपने इस मैं की जो करतूत है उसको जस्टिफाई करता है, उसका ईगो काम करता है कि नहीं करता? और जब वो हा करके हंस देता है, यस यस यस, हाँ तो फिर हाँ करके हंस दो, मेरे मजाक में वापस जस्टिफाई करने की जरूरत है? समाज में ऐसा है, निकल जाता है करते करते अपने पीठ में, ओ बच्चा निकल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर उसमें अब उसका ईगो का पैम्परिंग होता है, मजाक कर को हंस लो। सही 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 अजीत, बिल्कुल सही। फिर आपका ईगो नहीं है। जहां आपको चोट लगता है और पूरा आप अपने ब्रेन लगा के हजारों जस्टिफिकेशन सामने खड़ा करते हो, आपका ईगो काम कर रहा है, नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सही आदमी हूं, मैं बहुत पवित्र इंसान हूं, मैं बहुत नोबल हूं, ये सारे ईगो सामने निकल आया सर। मजाक मजाक में मैंने बहुत कुछ कर दिया। आर्ग्यूमेंट्स नमस्ते, आर्ग्यूमेंट्स ब्रिंग ईगो। माफ कर देना। अरे सर, हाँ, आई एम प्लीज्ड। नहीं सर, आजकल हम स्टैट्यूटरी वार्निंग साथ में दे देते हैं। Disclaimer, disclaimer. हमारे डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर देते हैं। हमारे एक सरदार जी नाराज हो गए, हमने बहुत मजाक उड़ा दिया उनका लास्ट टाइम। तो वो हंस नहीं और पाया। हाँ, एक्चुअली ये जो सर सेशन है सर, इन माय ओपिनियन, वेल आई शुड नॉट से दीज वर्ड्स, इट इज टू uncover the blocks. I mean, करेक्ट, bring out the mental blocks. So if he is एब्सोल्युटली। not, दैट इज ब्यूटीफुल। if one is not prepared to आहा आहा, unblock, बहुत बढ़िया। आहा he can't join. He आहा can't join. आहा, We बहुत have to बढ़िया। remove our mental blocks. We have to empty ourselves. रिमूव Not नहीं, to fill. वी Not हैव to टू fill. इग्नोर। Not to fill. रिमूव नहीं, But to empty. नो नो, नॉट एम्प्टी, इग्नोर, यू गॉट टू इग्नोर इट। झाड़ू लेके साफ करने की जरूरत नहीं है, फिर आपने उसको शैडो को मान लिया, ये भी एक किस्म की लाइट है। दी अरे भाई ऑपोजिट जिस ऑफ चीज की अस्तित्व नहीं है उसको क्या झाड़ू लगाओगे? He is living with the shadow. You are right, sir. हाँ, दी उसको ड्रॉप कर दो, दी We should ऑपोजिट face the ऑफ ड्रॉप sun. लव कर दो। We should face the sun. दी ऑपोजिट ऑफ हाँ, लव इज नॉट हेट, इट इज इग्नोर। करेक्ट, हेट करने की जरूरत उसको नहीं है। इग्नोर कर दो। इग्नोर करो, ऑपोजिट ऑफ लव इज इग्नोर, नॉट हेट। तो हमने रेडिक्यूल का गेम खेला था ना सुपर यू में। ये तो इधर पैदा नहीं ना, ये बंदर क्या जाने अदर का स्वाद। छोड़ो, इधर क्या बात करें, वहां जाओ तो पता चलेगा, वो चखो तो पता चलेगा। वो किसने बोला था, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, या क्या बोला था एक बंदे ने, क्या बोला था? मैं मैं एक एक अच्छा इंसान हूँ, हाँ, समथिंग टू दैट इफेक्ट हो। वो इवन सारे अपना को बोला, मजाक उड़ा इसको, सारे ने अच्छा इंसान अपना हूं, अच्छा इंसान हूं, उसको इतना रिडिक्यूल किया, वो जिंदगी में नहीं बोलेगा कि मैं अच्छा इंसान हूं। वो मुझे न्यूट्रल में रहो।
I am the ambassador of the unknown. आ जाओ ये ambassador बनाए तेरे को. Who are you? चलो आज खत्म करें सर, जी जी. 1 घंटा हो गया. जी more than. और जितना जितना ऑयस्टर की क्वालिटी इंप्रूव करेगा उतना टाइम घटेगा. ठीक है ना? सर नमस्ते. एक क्वेश्चन है माइंड में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. मेरे मन में जो पूजा करते हैं, मैं उनको बोलता भी हूँ, बड़े बड़े संतों को भी बोल चुका हूँ कि आप गिन के माला जपते हैं 108. ठीक है जी, ध्यान तो गिनती में रहेगा, तो आप माला कहाँ जप रहे हैं? तो दे डोंट हैव एनी आंसर. आई मीन आई डोंट से कि दे मस्ट बी, मे नॉट बी हैविंग नॉलेज एंड ऑल दैट, बट आई आस्क्ड रितंबरा जी एंड मेनी सेंट्स I met, and I always ask this thing: why counting in jap? Why counting in puja? Why counting of time? It should be whenever you wish. That is from my childhood. So I never count. I mean, most of the people, they just count the manka. And Okay. तो उधर So, I have a question to you on this premise, Rishi ji. Please. आप ये जो बता रहे हैं, इस बताने के पीछे आपका अभिप्राय क्या है? फिर मतलब क्या, जो हम नाटक You कर are रहे हैं दुनिया में, you are a wise person. सर हम You are not wise, not wise. रितंबरा जी से आप ज्यादा wise हो. I'm innocent. But the thing is, I mean, I'm looking at the surrounding, they are going to achieve. I mean, they are. आप वो नहीं करते, बाकी सारे बेवकूफ जो कर रहे हैं. मुझे ये समझ में आया. ऐसा नहीं है कि नहीं करता, मैं करता भी हूँ तो दूसरे स्टाइल से करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ सर्वे सुखिनः भवन्तु. सर वो वाली बात आ गई कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो, unless or until it is not violating or the stepping onto some other everything shoes. should be aligned with the nature. हाँ, और रितंबरा जी जो कर रहे हैं उसको करने दो. तुम्हें जो करना है वो करो. तारतम्य करके ये मत समझाओ कि आप you are more enlightened than other people. मैं उनको बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये तो मेरा क्वेश्चन. सर जी आपकी बात सुन करके अगर मुझे ये लगे वो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मुझे देना है, तो ऐसी बात करें क्यों? तारतम्य वाली बात नहीं करो. ठीक है ना? नहीं पूछना चाहिए जी, नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन. क्या ये क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन कहाँ किया? आपने जो कहा वो समझाने के लिए क्वेश्चन का बहाना किया आपने. नहीं समझाना नहीं, मैंने बोला जी मुझे बताइए. आप मैं नहीं करता बचपन से, मैं उनको नहीं आपने क्वेश्चन कहाँ पूछा? आप तो बचपन से ही ऐसे करते हैं. आपने क्वेश्चन कहाँ पूछा? तो करता हूँ, मैंने उनसे पूछा जी क्या गिनती करके माला करनी चाहिए, हमें जपना चाहिए? हम इसका जवाब आपको पता है. ध्यान उधर रहेगा गिनती में. सर जी इसका जवाब आपको पता है. ये जवाब आपके मन में है, वो आप दूसरे से कह करके आजमा रहे हैं. दिस इज नॉट an open question. You know the answer of the question. You just want other people to accept your answer. Knowledge. So this is not a question. Question is something of which I really don't know any answer. I don't have a concept. फिर तो नहीं निकलेगा बचपन से मैं ऐसा करता हूं वो करता हूं. मतलब यही सही तरीका है मेरे मन में. आप मुझे बताओ हाँ यही सही है, मैं जो कर रहा हूं गलत है. आप क्वेश्चन पूछ रहे जाके मेरी संतुष्टि होगी. क्वेश्चन पूछ रहे. I should change my question to Swami ji, I am chanting without counting. So is it the correct method? Is it a question? Why are you asking the question? Are you asking? Why are you asking the question? Are you seeking validation or are you seeking to improve myself? To improve my shortcomings? नहीं. You know the answer of the question. आपको पता है ये सही है जो आप कर रहे हो, तभी आप कर रहे हो. क्वेश्चन पूछ करके आप अपनी इवॉल्वमेंट का एक मैसेज दे रहे हो दुनियादारी को. अच्छा, ऐसा होना चाहिए. कल मुझे सर एक बहुत अच्छी चीज समझने को मिली पहली बार. जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे तरबूज है खासकर, उसका थोड़ा सा मोटा गुद्दा को उतार दें और बाहर किसी के घरों में, हर एक के घर में पार्क है, विवेका जी के तो सामने पीछे बगीचा नजर आ रहा है, तो सर कहीं भी जाके उसको गिलहरी जो है ना जी, उसको ऐसे करते खाती है और उसको देखिए वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं. तो दैट इज जस्ट ए मिरेकल. आई मीन
बहुत अच्छा लगता है जी। और प्रकृति से है ना, उसको गिलहरी भी खाती है और दूसरे प्राणी भी खा सकते हैं, उसको फ्रूट्स का भी आनंद लेंगे और वो पूरा खत्म कर देते हैं। इसी तरह से दूसरे फ्रूट्स है, खरबूजे के बीज जिसको हम मगज बोलते हैं, वी जस्ट थ्रो इट इन द गार्बेज। एनीवे, let us all try to be aligned with the nature, starting from ourselves, myself. बढ़िया बढ़िया, ब्यूटीफुल। खत्म करें आज। थैंक यू, विश यू अ ग्रेट संडे। शांति निकेतन से आप सबको प्रणाम, नमस्कार। अगले संडे को फिर मिलेंगे। Thank you everyone. Have a Thank you, sir. great Thank you. Sunday.